So today we'll discuss dynamics of moving charge in a magnetic field where your magnetic field is not perpendicular to velocity vector. पिछले क्लास में मैंने बता दिया था डायनामिक्स ऑफ मूविंग चार्ज व्हेन velocity vector is perpendicular to the magnetic field. We have done that. Like now we study this one. So today's topic is dynamics of moving charge in a magnetic field. Clear? Magnetic field. So दो केस हो गए इसके. When पहला केस वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, हमने ये कर लिया है पिछले क्लास में. सेकेंड वन इज व्हेन वेलोसिटी वेक्टर इज नॉट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. व्हेन v is not perpendicular to v. will explain this to the, लेकिन ये करेंगे आज, कल ये कर लिया. so let us assume this is your direction of magnetic field. This is the direction of magnetic field and there is a charge q moving in this direction with velocity v. So v is the velocity of charge. Velocity of charge and v is the magnetic field. V is the magnetic field and theta is the angle between velocity vector and v vector and magnetic field and velocity. So what? This is the direction of magnetic field, this is the direction of velocity vector. Clear? And v is the magnitude. V is the magnitude of v vector and v is the magnitude of v vector. So what? You can resolve this velocity vector into two components. One is parallel to magnetic field and other is perpendicular to magnetic field. Let us resolve this velocity vector into two components. One is parallel to magnetic field and other parallel to magnetic field now. So this component v cos theta will be parallel to magnetic field and this component v sin theta will be perpendicular to magnetic field. So v cos theta is parallel to magnetic field v and v sin theta is perpendicular to magnetic. So what? Means you can replace this velocity vector by two velocity vector v cos theta and v sin theta. So this is a magnetic field. And there is a charge particle q over here. Q is the charge. Here, so q is the charge. So this charge has two velocity. In this direction v cos theta and in this direction v sin theta. Now we have replaced this velocity vector by two component. This one and this one. ये अब नहीं लिखेंगे. इन दोनों का रिजल्टेंट ही ये होगा ना. Clear? So v cos theta and v sin theta. Clear? So these are the components. So there are two velocities acting on the charged particle. One is v cos theta, which is parallel to the magnetic field, and other is v sin theta, which is perpendicular to the magnetic field. Clear? Clear. So far, this component is along the direction of magnetic field. Means there will be no force acting on the charged particle due to this component. Na v cos theta is parallel to magnetic field. So due to this velocity component, there will be no any force acting on the charged particle. So there will be no any force acting on the charged particle. Na that okay. So what? चलो लिखो पहले. So this can be written as this. You can replace this velocity by two component now. So this is your charged particle q. एक velocity इधर है v cos theta and v sin theta. Due to this component v cos theta is in the direction of v na. V cos theta is parallel to v na, means due to this velocity component there will be no any force act on the charged particle na.
there will be no any force acting on the actual charge particle, that on the charge particle. Due to this component, there will be any force act on the charge particle, so this component will not change. This component will not change. Means direction as well in magnitude remains fixed na, means direction plus magnitude remains fixed. ये component कभी change नहीं होगा. Now there will be for this component v sin theta is perpendicular to b na, so a force will act on the charge particle due to this component na, clear, due to this component, so a force will act force will act on, है कि नहीं, and magnitude will be Fb is equal to Q V cross B, clear, and that is equal to Q VB sin theta, clear. This is the magnitude of force na, and direction will be what? Direction of force will be, this is your velocity and this is your B, inward ना, यानी perpendicular है, यानी कि this force AF is equal to Q VB sin theta, and this force is perpendicular to V sin theta and also perpendicular to magnetic field, clear. So this force is perpendicular to this velocity vector, means this force will only change the direction of this component, not magnitude. So this force will only change the direction of V sin theta, but not ठीक है. और दिस ये वाला जो कैसे किया है इसको v क्रॉस b, ये ध्यान देना जरूरी है. ये देखो तुम कर सकते हो यहाँ, इसको समझना जरूरी है, नहीं तो पता नहीं b को दिक्कत हो जाता है. दिस इज b and this is v, again this is velocity and this is theta, तो होगा क्या f इक्वल टू q और v क्रॉस b लगाओगे तो होगा क्या q vb sin थीटा. मैंने क्या किया, दो कंपोनेंट में बांट दिया, तो अब हम यही फोर्स लिखेंगे ना, यही वेलोसिटी, ये तो लिखेंगे नहीं, तो इसके केस में होगा क्या, इस केस में ये वेलोसिटी है, तो इसके लिए फोर्स, इस वेलोसिटी के लिए फोर्स कितना होगा, इसके लिए फोर्स फाइंड करो. इसके लिए फोर्स होगा एक पैरेलल, मान लो एक पैरेलल, वो होगा q और v cos थीटा क्रॉस b ना. तो अब क्या होगा, cos थीटा ये है और ये भी, इनके बीच का एंगल कितना है बाबू, 0. ये होगा q v cos थीटा cos 0 sin b into sin of 0, which is 0 na. And now for this force is F perpendicular, force acting on the charge particle due to perpendicular velocity vector will be AB is equal to Q, again V sin theta into B na, अरे क्रॉस B ना यार, so Q V sin theta into B into sin 90, and the sin 90 is 1, so Q V B sin of theta. यहाँ से किया मैंने, यहाँ से भी तुम कर सकते, लेकिन हमने क्या किया, you have replaced this velocity vector with two component ना, तो उसका टर्म हम डील करेंगे ना यार, तो इसके टर्म में 0 होता है, इसके टर्म में qv sin थीटा हो जाएगा, ये ध्यान रखना है. तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर खोलोगे तो वो आएगा. क्लियर. सो ड्यू टू दिस द linear force acting on the charge particle, so this component will never change, this v cos theta will never change, the direction of v cos theta and magnitude remains same, but due to this one v cos sin theta component, a force is acting and this force will only change the direction, not magnitude. इधर ओके सॉरी, this is charge v q, so about charge v cos theta and v sin theta. Due to this v sin theta
a force is acting which is called the Vf is equal to Q Vv sin theta and V cos theta F is equal to G. Clear? So what? So there is a force acting on the charged particle due to this ना. Clear? क्लियर तो होगा क्या बाबू कि फोर्स किधर होगा, इधर ना, यानी कि ये चार्ज इधर जाना चाह रहा है, इस पर फोर्स किधर लगेगा, अंदर की तरफ चल के रोटेशन करेगा ना, यानी कि दिस फोर्स विल बी रिस्पांसिबल फॉर सर्कुलर मोशन ना. मान लो कि चार्ज पार्टिकल इधर जाना चाह रहा है, इधर एक फोर्स लगेगा तो क्या होगा, हर पॉइंट पे फोर्स पर्टिकुलर लगेगा, फिर रोटेट करेगा. आगे से ड्यू टू दिस फोर्स चार्ज पार्टिकल विल हैव सर्कुलर मोशन विद वेलोसिटी v sin theta. So due to v sin theta, there is a force acting on the charged particle which is F is equal to q vv sin theta, and this force will responsible for the circular motion, or this force will apply some force so that charged particle move on a circular path with this speed. So v sin theta में चार्ज क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, चार्ज सर्कुलर मोशन करेगा, ऐसे ऐसे कोई दिक्कत, ऐसे मोशन करेगा. So v sin theta clear is the circular velocity and this force is responsible for that circular motion. तो ऐसा सर्कुलर मोशन करेगा, कोई दिक्कत आ रही बात समझ. एंड देयर यानी कि चार्ज पार्टिकल के पास दो वेलोसिटी है, एक तो है ऊपर और एक है ऐसे. देयर इज टू वेलोसिटी कंपोनेंट, वन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, अदर इन दिस डायरेक्शन. अपवर्ड डायरेक्शन पे एक फोर्स लगेगा इधर, तो क्या करेगा, इसको फोर्स अप्लाई करेगा कि तुम सर्कुलर मोशन में चलो. सो दिस एफ डी sin थीटा इज रिस्पांसिबल, एफ इज इक्वल टू क्यू डी sin थीटा इज रिस्पांसिबल फॉर द सर्कुलर मोशन. सो ड्यू टू दिस कंपोनेंट देयर इज अ सर्कुलर मोशन, मींस दिस फोर्स इज चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी वेक्टर, और डायरेक्शन ऐसा चेंज करके कि सर्कुलर मोशन का पाथ हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, सर्कुलर ट्रैक हो जाएगा, सर्कुलर मोशन करेगा. सो एक कंपोनेंट होगा जिसको वजह से सर्कुलर मोशन करेगा. बट दिस कंपोनेंट v cos थीटा इज नॉट चेंजिंग द नाइदर मैग्नीट्यूड नॉर डायरेक्शन. तो ये एक फोर्स की वजह से v sin थीटा q v sin थीटा की वजह से उसका सर्कुलर मोशन है, यानी कि v sin थीटा जो है वो सर्कुलर वेलोसिटी है, सर्कुलर वेलोसिटी. लेकिन v cos थीटा क्या है बाबू, लीनियर वेलोसिटी, यानी कि चार्ज के पास दो वेलोसिटी है, वन इज सर्कुलर अनदर इज लीनियर, यानी कि रेयर मोशन होगा बाबू. वो दो कंपोनेंट की वजह से होगा, एक तो v sin थीटा कंपोनेंट की वजह से होगा प्लस v cos थीटा कंपोनेंट की वजह से. इसकी वजह से मोशन क्या है बाबू, सर्कुलर. इसकी वजह से मोशन क्या होगा, लीनियर, यानी चार्ज के पास जो है ऐसा एक मोशन है, ऐसा मोशन है, और एक कौन सा मोशन है, लीनियर, यानी चार्ज के पास ये भी मोशन है और लीनियर मोशन. चार्ज कैसे जाएगा, सर्कुलर भी करेगा और लीनियर भी. तो साथ चार्ज सर्कुलर करने के साथ आगे भी बढ़ेगा, ऐसे कोई दिक्कत. सर्कुलर v sin थीटा की वजह से करेगा और लीनियर v cos थीटा की वजह से. तो सर्कुलर करते करते लीनियर भी करेगा, तो दो कंपोनेंट है ना, सर्कुलर प्लस लीनियर, यानी चार्ज पार्टिकल कैसे जाएगा बाबू, सर्कुलर के साथ साथ आगे भी बढ़ेगा. तो सर्कुलर प्लस लीनियर मोशन को बोलते हैं हेलिकल मोशन. क्या बोलते हैं, हेलिकल मोशन. स्प्रिंग टाइप का, क्या स्प्रिंग टाइप. स्प्रिंग देखते हो कैसे होता है, क्लियर. तो बाबू this v sin theta is responsible for a circular motion and v cos theta is responsible for the linear motion, and combination of circular plus linear is called the helical motion. So when your magnetic field is not perpendicular to velocity vector, the motion of the charged particle will be helical, which is the combination of two motions, circular and linear. आरी बात समझ. सो लिखो b q v cos theta and v sin theta. So motion will be of combination of two na, due to this linear. So linear motion is due to v cos theta component, due to v cos theta component plus circular due to v sin theta component, and the combination of these two motion is the helical motion, is the resultant motion. Helical motion is the resultant motion.
दोनों मोशन का कमीशन हेलिकल मोशन होगा, यानी कि चार्ज पार्टिकल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे चलेगा, ऐसे। क्लियर? ऐसे चलेगा, यहाँ शुरू होगा ऐसे चलेगा। क्लियर? क्लियर? सो व्हाट? सो मींस पाथ जो है बाबू ऐसे होगा, ऐसे देखो, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा स्प्रिंग की तरह। तो वह क्या कि मान लो कि ये क्या करेगा, ऐसे चल रहा है, ऐसे एक साइकिल यहाँ से कंप्लीट करके फिर ऐसे जा रहा है ना, तो मान लो कि यहाँ से मोशन चला, अब फिर यहाँ से यहाँ गया वापस, एक साइकिल कंप्लीट कर लिया ना, यानी एक सर्किल बना लिया, फिर यहाँ से चला और ऐसे घूम के फिर यहाँ एक सर्किल बना लिया, फिर यहाँ से चला, फिर यानी कि सर्कुलर मोशन भी कर रहा है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट। मान लो एक पार्टिकल यहाँ चार्ज पार्टिकल इनिशियली कहाँ है, यहाँ, बाद में कहाँ है, यहाँ, फिर कहाँ है, यहाँ ना, या यहाँ से देखो यहाँ था, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ है, यानी कि दो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, यहाँ से यहाँ गया तो सर्कुलर मोशन, लेकिन यहाँ से यहाँ भी तो शिफ्ट हुआ, यानी यहाँ से यहाँ गया सर्कुलर, और देखोगे तो यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ है, फिर यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ है, यानी ऑब्जेक्ट हैव टू सर्कुलर प्लस लीनियर resulted in the helical, and object is moving on a helical path, object is moving on a helical path ना, चार्ज पार्टिकल और ऑब्जेक्ट और चार्ज पार्टिकल is moving on helical path ना। अब देखो बाबू एक सर्कुलर मोशन है, इफ देयर इज सर्कुलर मोशन there must be some force acting towards the center ना, and that is the centripetal force, that is the centripetal force। तो मान लो कि ये सर्कुलर मोशन है, यानी कि ऐसा सर्किल बना रहा है ना, ये ऐसा सर्किल बनाएगा ना, सर्कुलर मोशन होगा तो सेंट्रिपिटल फोर्स लगेगा किधर, टुवर्ड्स द सेंटर, वो होगा कितना, m v sin थीटा स्क्वायर अपॉन r ना, mv स्क्वायर अपॉन r, दिस इज द सेंट्रिपिटल fc, और मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, वो होगा q v b sin थीटा। सो फॉर circular motion the two force must be equal, your fc must be equal to f na, so what, m v sin theta square must be equal to q v sin theta into b na, so यहाँ से यहाँ करके बचेगा कितना, m v sin theta upon r is equal to q v ना, so r is equal to q v upon m v sin theta अपॉन क्यू बी ना, यानी ऑब्जेक्ट का जो सर्कुलर मोशन है उसका रेडियस कितना होगा बाबू, एम बी साइन थीटा अपॉन आर, यानी जो तुम्हारा हेलिकल पाथ है, तो हेलिकल पाथ इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर और सर्कुलर ना, तो सर्कुलर मोशन का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। अच्छा तुमने यहाँ से शुरू किया मोशन, देखो शिफ्ट देखिए, इसका हाथ का पोजीशन देखना, यहाँ ऐसा अगर करेगा तो लीनियर क्या, लीनियर नहीं है, खाली सर्कुलर है, लेकिन इसके पास क्योंकि यहाँ से चलता है और फिर यहाँ से देखो बढ़ रहा, आगे भी बढ़ रहा है, यहाँ से चला और फिर घूम के यहाँ आया ना, तो यहाँ से चला फिर घूम के यहाँ है, एक साइकिल कंप्लीट हुआ ना, तो उसका रेडियस कितना होगा, एम वी साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये जो रेडियस है इसका, यहाँ से ये डिस्टेंस, ये क्या बाबू, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। तो एक साइकिल कंप्लीट करने का जो टाइम होगा उसको क्या बोलेंगे, मान लो यहाँ से चला, अब घूम के फिर यहाँ आया, फिर घूम के यहाँ आया, ऐसे चल रहा है ना ये, तो यहाँ से जब ऐसे घूम के यहाँ आया तो जो टाइम लगेगा उसी को बोलते हैं वन टाइम पीरियड, में टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल, फिर यहाँ से चलेगा तो सेकंड टाइम पीरियड, यहाँ से चलेगा तो थर्ड टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल ना, सो टाइम पीरियड कितना होगा बाबू, टाइम पीरियड t इसका क्या लिखोगे, 2 पाई r अपॉन v, और v की जगह क्या रखेंगे बाबू, v sin थीटा ना, v sin थीटा, तो कितना होगा 2 पाई एन प्लस ऑफ आर, यू कैन राइट mv थीटा अपॉन qb इनटू v sin थीटा, v sin थीटा बचेगा कितना, 2 पाई m अपॉन qb, दिस इज द टाइम पीरियड, सो t इक्वल टू 2 पाई m अपॉन qb, and this is independent of velocity and theta, independent of velocity and theta, this will not depends upon velocity and theta, is that okay? Again frequency is equal to 1 upon t which is equal to qb upon 2 pi m, this is also independent of frequency and independent of velocity and theta, यानी एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा। चलो लिखो, इसको लिखो, कोई नहीं आया ना, आया तो आदर्श यादव के चैनल अभिषेक हेलिकल पाथ
तो मान लो ऑब्जेक्ट एक बार यहाँ हो किसी टाइम पर, किसी टाइम क्या हो यहाँ हो, तो यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगेगा? टाइम पीरियड की इक्वल ना, यहाँ से यहाँ जाने का जो टाइम होगा वही टी होगा ना। पॉइंट ए है और पॉइंट बी है, तो ए से बी जाने का जो टाइम होगा दैट इज इक्वल टू टाइम पीरियड ना। और वो किसके इक्वल है? 2 पाई m अपॉन क्यूबी। क्लियर? क्यूबी तो होगा क्या, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस चलेगा कुछ डिस्टेंस चलेगा ना यहाँ से, यानी कि दो सर्कुलर मोशन के साथ क्या होगा? लीनियर डिस्टेंस चल रहा है ना। सो लीनियर यानी दैट ये टर्म कॉल्ड द पिच, लीनियर डिस्टेंस covered by object during motion, object during in one cycle, one time period, in one time period। एक टाइम पीरियड में जितना लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, या एक साइकिल में, इन वन साइकिल भी हो सकता है, इन वन या इन वन cycle। So linear distance traveled by the charged particle in one time period or in one cycle is called the pitch. So this distance AB is called the pitch. So what? Pitch is equal to v cos theta, linear distance, into t na time period. So what? V cos theta into 2 pi m upon cube, and this is the pitch. V 2 pi m v cos theta upon cube, and this is the pitch. Is that okay? Is that okay? So think about this time period. T is equal to 2 pi m upon cube, or f is equal to qb by 2 pi m. Here time period and frequency both are independent of velocity. So they, yani your time period or frequency is independent of velocity only when if your velocity of charged particle is less than c, very less than c. तब ये if your velocity if velocity of charged particle is comparison to c, then your frequency f and t are dependent upon frequency. आइंस्टाइन मैकेनिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स और आइंस्टाइन मैकेनिक्स जानते हो ना। मैकेनिक्स दो होते हैं, आइंस्टाइन न्यूटोनियन और दूसरा होता है आइंस्टाइन। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स ओनली वेरी वेरी योर वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज वेरी लेस देन c ना, वेरी लेस देन c। और आइंस्टाइन मैकेनिक्स क्या है? v हमेशा सबके लिए वैलिड है। ये फेल हो जाएगा अगर वेलोसिटी कंपेरिजन टू c हो जाए, तो आइंस्टाइन मैकेनिक्स फेल हो जाता है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या होगा? वहां फेल हो जाता है। तो वही है, ये सब न्यूटोनियन मैकेनिक्स से डील कर रहे हैं आपका। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स क्या बोलता है कि योर वेलोसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी इज योर टाइम पीरियड एंड द फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज। दिस इज ट्रू ओनली व्हेन वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज इज वेरी लेस देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जैसे ही मूविंग चार्ज की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा, तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स फेल हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड डिपेंड्स अपॉन वेलोसिटी। क्लियर? they will no longer independent of velocity. Clear? Time period and frequency will be no longer independent of velocity. If your velocity is very less than the velocity of light, then your frequency and time period will be independent of velocity of charged particle. But if your velocity of charged particle is approx equal to or comparison to the speed of light, then your frequency and time period will depends upon a speed of charge. Keep this in mind. यह आइंस्टाइन मैकेनिक्स का कहानी है। अब कितना इक्वल होगा? आ रही बात समझ? जैसे कि मान लो कि तुम्हारे v है वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज और c है वो है बाबू वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो अगर v वेरी लेस देन होगा c, तो क्या होगा? f एंड t विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ, and if v is approx equal to c, then f and t will be dependent of velocity v। कोई दिक्कत? और एक डिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी
v। अब कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? if your v is in between, if your v is in between यानी greater than 10% of c and less than, कैसे लिखें, हाँ, and less than c, इस रेंज में अगर वेलोसिटी हो, लिख दो इसमें, कोडिंग कर देते हैं ऐसे 10% of c v और e, अगर ऐसा मैं लिखूं यानी दिस इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, दिस इज वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी हमेशा c से छोटा होगा और 10% ऑफ c यानी कि अगर वेलोसिटी का जो चार्ज पार्टिकल का रेंज है वो इस रेंज में 10% ऑफ c एंड लेस देन c, इस रेंज में अगर है देन योर फ्रीक्वेंसी विल डिपेंड्स अपॉन v। अगर इससे छोटा है यानी कि इससे है देन योर f एंड t विल डिपेंड्स अपॉन v, but if your v is less than 10% of c, तब क्या होगा? इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा? तब f और t क्या होगा? f and t will be independent of। अब क्लियर कोई चीज है? क्लियर तो हमेशा ध्यान रखना देयर द कंडीशन ओवर है। क्लियर? तो जो भी रिजल्ट एज्यूम करो उसमें क्या एज्यूम किया तुमने? वेलोसिटी ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल इज वेरी वेरी लेस देन c या इस रेंज में लेस देन, और कंपैरिजन का तो समझ आ गया ना तुम लोगों को। सो लिखो, सो दिस इज द मैकेनिक्स और डायनामिक्स ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द वेलोसिटी सेलेक्टर, दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक। चलो।